بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 330۔ باب اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ۔ مشرک موت کے وقت اگر لا الہ الا اللہ کہے تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا معتبر ہے اور وہ اہل اسلام میں شمار ہوگا اور اس پر کوئی بدگمانی نہیں کی جائے گی۔ یہ باب باندھا ہے اور اس پر 687 نمبر حدیث سیدنا مسیب بن حسن سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ہیں ان کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، مسیب بھی صحابی ہیں اور حسن بھی صحابی ہیں، اور مسیب سے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک روایت مروی ہے۔ اس طرح کی روایات کو محدثین وحدان کہتے ہیں، یعنی ایسے راوی کہ جن کی کل زندگی میں صرف ان سے ایک روایت مروی ہو۔ لیکن بہرحال یہ صحابی ہیں، والصحابۃ کلھم عدول، اور صحابہ سب کے سب عادل ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس زمانے کی بات کیسے کہہ رہے ہیں جب وہ موجود ہی نہیں تھے۔ ابو طالب کی وفات 9 کی ہے، 9 نبوی کی ہے، اور مسیب بن حزن حدیبیہ میں یعنی 7 ہجری میں، 7 ہجری میں گویا کوئی 7 اور 11 سال بعد وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں جس میں وہ خود شریک نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تو بھول گئے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسی کوئی بات اہل السنہ نے نہ کی، نہ اس روایت کو کسی نے مشکوک قرار دیا، اور اس روایت نے صحیح بخاری میں جگہ پا لی، اس روایت نے صحیح بخاری میں جگہ پا لی، تو جس سے کم از کم یہ بات تو کلیئر ہو کر سامنے آتی ہے کہ صحابہ اگر 50 سال پہلے یا 50 سال بعد کی کوئی خبر دے رہے ہیں تو صحابیت کا جو درجہ ہے وہ ان کو معتبر قرار دیتا ہے۔ بس اتنا محدثین کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحابی ہے۔ صحابی سے پچھلے جتنے بھی راوی ہوتے ہیں، محدث سے لے کر کتاب لکھنے والے مصنف سے لے کر صحابی کے شاگرد تک جتنے بھی راوی ہوتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں جرح بھی ہے اور تعدیل بھی ہے، تحقیق بھی ہے، تصدیق بھی ہے، اس کا تعارف بھی ہے۔ اور جب صحابی پر بات آتی ہے تو کوئی جرح کی یا تعدیل کی جو کتاب ہے وہ اس پر حکم نہیں لگاتی، بس اتنا کہتی ہے کہ یہ صحابی ہے۔ والصحابۃ کلھم عدول، والصحابۃ کلھم عدول۔ اب جن لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں مسیب بن حزن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے تھے۔ 11 سال پہلے ابو طالب کی وفات ہوئی تھی، وہ بھی شیب بنی ہاشم میں وفات ہوئی تھی۔ مکے میں بھی آپ اس وقت آزاد نہیں تھے اور قید کے دوران ابو طالب کی وفات ہو گئی، تو اس زمانے کی بات مسیب اب کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، صحابی سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھنے والے کو چاہیے کہ وہ اہل السنہ کے نقطہ نظر کے مطابق خاموش رہے۔ قرآن پاک میں جتنی آیتوں میں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المہتدون، جتنی بھی آیتوں میں ہدایت یافتہ، انعام یافتہ اور مومنون حقا اور سچے لوگ اور پسندیدہ لوگ اور جتنی بھی تعریفی کلمات ایمانداروں کے بارے میں آئی ہیں، ان تعریفوں کے سب سے پہلے اولین مصداق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منہجی مسئلہ ہے اور اہل السنہ کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے۔ اہل السنہ کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے۔ اب پیچھے بھی توجہ آپ کی بہت مقامات پر دلاتے رہے ہیں، مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی دور کی باتیں بتاتے ہیں، وہ مکی دور انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، مکی دور انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو مدنی دور کے بھی 7ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو اہل السنہ اس پر بات نہیں اٹھاتے۔ ہمارے معاشرے میں جو انکار حدیث کی جو گرد اڑی ہے، یا جیسے
असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो सवालात का और इश्कालात का जो सिलसिला पैदा हुआ है, वो अहल सुन्ना के इस बुनियादी और तस्लीम शुदा जो उसूल है ना, इस उसूल से हटने या रूगर्दानी करने की वजह से हुआ है। तो हमारा जो पेश नज़र ये नहीं है कि जी अहल सुन्ना का नज़रिया कैसा है कैसा नहीं है, उनका नज़रिया कैसा है कैसा नहीं है, इस बहस में पढ़ने का हमें ये ना मौका है ना हम इसमें पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम इतनी बात तो ज़रूर करना चाहते हैं कि सहाबी को लेकर अगर कोई बहस करता है तो वो अहलुस सुन्ना का फ़र्द ना समझा जाए। सहाबी को लेकर अगर कोई जरह करता है या तादील करता है या जरह करता है या सहाबी के किसी अमल के हवाले से या किसी कौल के हवाले से या किसी रिवायत के हवाले से, उसके सहाबी होने के बावजूद उस पर वो कोई भी नुक्ता नज़र पेश करता है, तो ये अहलुस सुन्ना के नुक्ता नज़र से मुनहरिफ है। बस लियाहलिका मन हलका अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्या अन बय्यिना, उस पर ये क्लियर कर दिया जाए, कौम पर ये क्लियर कर दिया जाए कि ये अहलुस सुन्ना का नुमाइंदा नहीं है। वो भी अपने आप को पेश करता है तो बिस्मिल्लाह, हमें कोई एतराज़ नहीं है। दुनिया में हर तरह के नज़रियात पेश किए जाते हैं, वो करे, लेकिन वो सुन्नी बनकर ना करे, वो सुन्नी बनकर ना करे, ताकि अहलुस सुन्ना मुगालते का शिकार ना हो। ये क्लियर कर दिया जाए कि ये अहलुस सुन्ना का नुमाइंदा नहीं है, अहलुस सुन्ना का सुन्नत के नुक्ता नज़र का ये तर्जमान नहीं है। बस ये काफ़ी है हमारे लिए, इससे ज़्यादा नहीं। हम किसी पर दरोगा नहीं लगे हुए, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, कि हम किसी को खींच कर ज़बरदस्ती उससे नज़रियात मनवाते रहें। अहलुस सुन्ना अहले इस्लाम हैं जो, उनके यहाँ सहाबा पर जरा नहीं की जाती। अहलुस सुन्ना के यहाँ ये एक तस्लीम शुदा बात है। मुसय्यब बिन हज़न, अब यहाँ जो मशकूक ज़हनियतें होती हैं वो इसी तरह होती हैं। वो आप ऐनक उतारेंगे चढ़ाएंगे, वो कहेंगे देखिए साहब, एक मुलाकात हुई, 10 मिनट की मुलाकात हुई, 11 साल पहले का वाक़या बयान कर रहे हैं, इसके अलावा कोई हदीस नहीं है, बाकी ज़िंदगी में ये क्या काम करते रहे, उलझा देंगे। और सारी उलझन के बाद जो नतीजा निकलेगा बेएतमादी, जो नतीजा निकलेगा वो ये है कि एतमाद और तसल्ली और भरोसा उठ जाएगा। बस भरोसा उठ जाएगा, और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, अगर भरोसा उठ जाए ना तो ये 50-50 साल भरोसा बनने में लग जाते हैं, फिर भी भरोसा बनने में मुश्किल होती है। और ये बड़ा नुकसान है, ये बड़ा नुकसान है। इल्म हदीस से भरोसा उठ जाए, सुन्नत से भरोसा उठ जाए या सहाबा से भरोसा उठ जाए तो मुसलमान के पास कोई शय भी नहीं रहती, कोई शय काबिल एतबार, कोई शय काबिल एतबार नहीं रहती। और हमने इस हवाले से नुकसान उठाते हुए देखा है लोगों को। अल्लाह ताला हमारी आक़िबत की हिफाजत फरमाए, सब भाइयों की आक़िबत की हिफाजत फरमाए। यहाँ हमारे पास आके अहबाब बैठा करते थे, कुछ फौत हो गए तो मगफ़िरत की दुआ करते हुए भी ज़ुबान लड़खड़ाती है। यहाँ उसे पकड़ के लाए, उसे पकड़ के लाए, बात की, कभी रूह का मसला, कभी अज़ाब क़ब्र का मसला, कभी किसी चीज़ का मसला। अब रिसालत पर बहस है, अब नबूवत पर बहस है, अब कुरान पर बहस है, अब वही पर बहस है, अब हिफाजत हदीस पर बहस है, अब अज़ाब क़ब्र पर बहस है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुख्तलिफ नज़रिया, उससे चूँ चढ़ाई, उससे अड़ाई, उससे अड़ाई, उसके पास गए, बात शुरू कर दी, उसके पास गए, बात शुरू कर दी, उलझन पैदा हुई। सब नज़रियात को छोड़कर साफ अल्फाज में कहने लग गए कि हम तुम्हारी तरह के मुसले नहीं हैं, हम तुम्हारी तरह के, हम झूठ क्यों बोलेंगे। मेरे सामने कहा है साहब, फौत हो गए हैं, कहते हैं हम, मैं मुसलमान थोड़ी हूँ, मैं मुसला थोड़ी हूँ, मैं झूठ बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मुसलमान नहीं हूँ। आओ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मज़हबी परहेज़गार दीनदार लोगों में रहने वाला बंदा अपने नज़रिए का मजाक उड़ाकर अपनी आक़िबत को ख़तरे में डाले, ये बात ख़तरनाक है। तो बचपना कोई भी नज़रिए के हवाले से ना हो। नहीं नहीं भाई, अहले इस्लाम में सबसे मोतबर किताब है और सबसे मोतबर तबका है सहाबा किराम का। इसलिए हम कोई, मैं तो हैरान होता हूँ, मैंने पिछले दर्स में जिक्र किया था ना कि अबू तालिब की वफ़ात को लेकर लोग बातें करते हैं, मुनाज़रे करते हैं, चैलेंज करते हैं, वो करते हैं, वो ये करते हैं।
میں کہتا ہوں ابو طالب کے باقی سارے بھائیوں کو تو اس فضیلت میں آپ بھی نہیں مانتے. ابو طالب کے 11 بھائی اور بھی تو تھے، 9 بھائی اور بھی تو تھے نا، 9 بھائی اور بھی تو تھے. ابو طالب کے دادا کو، ابو طالب کے والد کو، ابو طالب کی ساری اولاد کو بھی فضیلت والا نہیں مانتے. فضیلت خون میں تو نہیں ہوتی ہے نا، فضیلت تو نظریے میں ہوتی ہے نا. طالب کا آپ پلٹ کے نام بھی نہیں لیتے، وہ علی کے بھائی ہیں، وہ علی کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی صحابیت کی وجہ سے درجہ پا گئے اور طالب نے صحابیت کا مقام نہیں پایا، تو آپ نام بھی نہیں لیتے. ابو طالب ہوں، ابو لہب ہوں، یہ دونوں چچا ہیں، دونوں مسلمان نہیں ہوئے. کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. اور جبکہ عباس ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھائی ہیں، دونوں مسلمان ہو گئے. وہ چچا، ان کی عظمت ہے. اصل اہمیت خون میں نہیں ہے، خون میں نہیں ہے. عظمت کا تعلق ہے جو، وہ تو ہدایت کے ساتھ ہے، وہ تو ہدایت کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں قال لما حضرت ابا طالب الوفات جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر یہ صحابی نہ ہوتا تو یہ روایت ضعیف تھی، مرسل تھی، بلکہ منقطع تھی. بیان کرنے والا سعید مسیب بن حسن ہے، کہتے ہیں جب ابو طالب کی وفات ہوئی. بڑا انقطاع ہے، بڑا انقطاع ہے. بات کر رہے ہیں 2000 کی اور کر رہے ہیں 2011 میں. اس علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ گئے ہی نہیں ہیں، لیکن صحابیت ہماری زبانوں کو چپ کرا دیتی ہے. لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی وفات ہوئی. شرائع حدیث جب اس طرح کے جملوں پر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید یہ بات رسول اللہ نے بتائی، شاید یہ بات علی رضی اللہ عنہ نے بتائی، شاید یہ بات کسی اور صحابی نے بتائی، شاید یہ بات کسی اور صحابی نے بتائی. یہی بات تابعی کہتے نا، تو اس میں 6 طرح کی باتیں کی ہیں، 6 یا 8 طرح کی باتیں کی ہیں محدثین نے، کہ تابعی کہے کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی. تو محدثین کہیں گے بتایا کس نے، تجھے کس نے بتایا. اگر وہ نہیں بتاتا تو کہیں گے حدیث منقطع ہے، چھوڑ دو، حدیث منقطع ہے، چھوڑ دو، جب تک کہ درمیان کا واسطہ نہ بتائے. بندہ پوچھے کہ تابعی ہے تو اس نے صحابی سے سنا ہوگا. محدثین جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے دوسرے تابعی سے سنا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے دوسرے تابعی سے سنا ہو. اگر اس نے تابعی سے سنا ہے تو اس تابعی نے ممکن ہے اگلے بھی تابعی سے سنا ہو، اس نے اگلے بھی تابعی سے سنا ہو. صحابی کی بات ہوتی تو ہم چپ کر جاتے، یہ اگر صحابی کا نام نہیں لیتا تو ہمیں قبول نہیں ہے. یہ تو تسلیم شدہ بات ہے، یہ تو تسلیم شدہ بات ہے، اس پر کوئی انگلیاں نہیں اٹھاتا ہے، اس پر کوئی انگلیاں نہیں اٹھاتا ہے. اس لیے صحابیت کا درجہ اہل اسلام میں تو اس درجے کا ہے. اب فلاں صحابی کی میں حقیقت بتاتا ہوں اور فلاں صحابی کی حقیقت بتاتا ہوں. صحابہ انسان تھے، صحابہ انسان تھے، اللہ ضامن ہوا ان کی نیک نیتی کا، نیک نیتی کلیئر ہے. باقی وہ تھے انسان، انسانوں سے انسانوں جیسے کام ہو سکتے ہیں، غصہ آ سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، صاحب ہو سکتا ہے، بھول ہو سکتی ہے، سب کچھ. لیکن دل میں کھوٹ ہو ایسا سوال ہی پیدا نہیں، اسلام دشمنی ہو ایسا سوال ہی پیدا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جب ابو طالب کی وفات ہوئی جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابا جہل ابن ہشام. جب وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے اور وہاں ابو جہل بن ہشام آپ کے چچا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ عبداللہ ابن ابی امیہ بن المغیرہ، عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھا ہوا تھا. یہ دونوں مشرکین کے سربراہوں میں سے ہیں، یہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی طالب، آپ نے اپنے چچا سے کہا اے عمی، چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہیں. کلمۃ
अशहदु लका बिहा इंदल्लाह, आप कह दें मैं आपके ईमान का अल्लाह के नज़दीक गवाह बन जाऊँगा। मुहद्दिस का नुक्ता नज़र वाज़ेह हो गया। मुहद्दिस ने बाब बांधा कि मुशरिक अगर मौत के वक्त कलमा पढ़ ले तो उसका कलमा कबूल है। अगर कबूल ही नहीं होना था कलमा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब को कहते ही ना। आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अबू तालिब अगर कह दे कलमा तो वो कबूल हो जाएगा। अशहदु लका बिहा इंदल्लाह क़ाल अबू जहल व अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या या अबा तालिब। वहाँ अबू जहल और अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या बैठे थे। उन्होंने कहा अबू तालिब तरगब अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, अपने अब्बा के दीन अब्दुल मुत्तलिब के दीन से आप बेरग़बत हो जाएंगे, मरते वक्त अब्बा का दीन छोड़ देंगे क्या? फ़लम यज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यारिदुहा अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल अबू तालिब पर ये पेशकश करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल अबू तालिब पर यह पेशकश करते रहे कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। व यहूदान बितिलकल मकाला, और वो दोनों भी अपनी बात उसी तरह दोहराते रहे। अब अबू तालिब ने हत्ता क़ाल अबू तालिब आखिर मा कल्लमहुम हुवा अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, आखिरी बात जो अबू तालिब ने कही उसने कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत और दीन पर इस दुनिया से जा रहा हूँ। बाबा यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसने इनकार किया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। उसने इनकार किया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमा वल्लाहि ला अस्तग़फ़िरन्न लका मा लम उन्हा अन्का, अल्लाह की कसम मैं आपके लिए मग़फ़िरत मांगता रहूँगा जब तक कि मुझे आपके लिए बख्शिश मांगने से रोक ना दिया जाए। फ़अंज़लल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा की 113 नंबर आयत नाज़िल की। मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ी वल्लज़ीना मअहू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली क़ुरबा। हाँ जी जी, नबी को इस बात का और नबी के साथियों को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अगरचे ये मुशरिकीन उली क़ुरबा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हों। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़फ़िरत की दुआ करने से मना कर दिया गया, मग़फ़िरत की दुआ करने से मना कर दिया गया। ये कोई ऐसी बहस नहीं है कि जिस पर मुनाज़रे किए जाएँ, जिस पर चैलेंज दिए जाएँ और जिसे अहले इस्लाम के दरमियान मौज़ूए बहस बनाया जाए कि जी अबू तालिब मुसलमान फ़ौत हुए थे या मुसलमान फ़ौत नहीं हुए थे। लेकिन बहरहाल नुक्ता नज़र इस हदीस से जो पता चलता है, उसने अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने से आखिरी वक्त इनकार किया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने से इनकार किया था। हुस्न जमाल का वो कायल था। पीछे हमने पढ़ा है कि अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल के मुताल्लिक़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ के मुताल्लिक़ एक कसीदा लिखा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-12 साल के थे, अब यस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही, मेरा भतीजा सफ़ेद रंग का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि बादल भी जिनसे पानी तलब करता है। इस तरह का उसने अशार कहे थे। ये मोहब्बत का इजहार है। कोई हुस्न जमाल को मानता हो, कोई जुल्फ़ों को मानता हो, कोई चेहरे को मानता हो, कोई खूबसूरती को तस्लीम करता हो, कोई कद काठ को मानता हो, लेकिन वो रिसालत का इनकार कर दे तो उसकी ये मोहब्बत किसी काम की नहीं है, उसकी ये मोहब्बत किसी काम की नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अफसरदा हुए जब उसकी मग़फ़िरत की दुआ करने से मना किया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाज़िल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, आप उसे हिदायत की तौफ़ीक नहीं दे सकते कि जिसे आप हिदायत देना चाहें, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत नसीब कर देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत नसीब फरमा देता है। आखिरी वक्त का कलमा मोतबर है, ये मसला साबित हुआ इंशाअल्लाह। और बुखारी में ही दूसरे मकाम पर आता है, आप अफसरदा हालत में उठकर तशरीफ़ ले गए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला
अन्हु आए और उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन्ना अम्मक शैख़ अज़्ज़ाल क़द हलका। इंतहाई बेताबी, बेचैनी और परेशानी के ये अल्फाज हैं, बुखारी में यही अल्फाज आए हैं। इन्ना अम्मका, आपके चचा, अशैख़, उम्र रसीदा, बूढ़े, अज़्ज़ाल, हिदायत से हटे हुए, आपका बूढ़ा चचा जो हिदायत से हटा हुआ और गुमराह था, क़द हलका, दुनिया छोड़ गया है, अब मैं क्या करूँ, मेरा अब्बा था, मैं क्या करूँ। आपने फरमाया इज़हब फ़वारी, जा और जाकर उसको दफना दे, जा और जाकर उसको दफना दे। और वो गए और वो जाकर दफना आए। तो ये सूरत हाल है अबू तालिब की वफ़ात के हवाले से इंशाअल्लाह। बाब मौइज़तिल मुहद्दिस इंदल क़ब्र, मुहद्दिस क़ब्र के पास बैठे हुए कोई नसीहत करना चाहे तो कर सकता है। वक़ुऊद असहाबिही हौलहू, और जो हाज़रीन हैं वो इर्द गिर्द बैठे हुए हों तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये यकीनन ये कोई उर्स नहीं है, ये कोई मेला नहीं है, ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुकर्रर प्रोग्राम के लिए नहीं गए थे कि जिसके इश्तिहारात लगाए गए हों, जिसके लिए कोई ऐलानात किए गए हों, जिसके लिए कोई पंडाल तैयार किया गया हो, जिसके लिए कोई मेहमानाने खुसूसी हों, जिसके लिए कोई इस तरह का एहतमाम हो, ऐसा कुछ नहीं। कुन्ना फ़ी जनाज़ा, हम जनाजे में गए हुए थे, हम जनाजे में गए हुए थे। अब जनाजे में जाकर जब गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस बरा भी आई है, ये भी है, जब आप जनाजे में गए तो लाहद की तैयारी में अभी कुछ टाइम बाकी है, लाहद की तैयारी में कुछ टाइम बाकी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि 24-24 घंटे बाद मैयतें दफन होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया है कि बंदे की तबीयत जब ख़तरे को पहुँचती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला कर दी जाती। आप तशरीफ़ ले आते और मरने वाले को आप कलमे की तलकीन करते, बंदे की वफ़ात तक साथ ठहरते। जब उसकी वफ़ात हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आंखें बंद करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बदन को सीधा फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि भाई जाओ इसको गुस्ल दो और इसको कफनाओ और कफना कर ले आओ। और एक टीम को आप भेज देते कि जाओ कब्र की खुदाई करो। कुछ कब्र की खुदाई के लिए चले जाते और कुछ मैयत को गुस्ल देने लगते। गुस्ल हो जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाते, मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाते। जब कब्रिस्तान पहुंचते तो कब्र की खुदाई में अभी कुछ टाइम बाकी होता, तो इसलिए इंतज़ार करना पड़ता ताकि कब्र की खुदाई मुकम्मल हो जाए और तदफीन कर दी जाए। तो कब्र की खुदाई हो रही थी, आप वहाँ बैठ गए। अब यहाँ बैठे हुए कोई मसला कोई पूछ लेता है, वो बता दें, नसीहत की बात कर दें या किसी हदीस को बयान कर दें, ये गैर रस्मी नसीहत है। गैर रस्मी नसीहत तो कहीं भी की जा सकती है, गैर रस्मी नसीहत तो कहीं भी की जा सकती है। वो क्या कब्रिस्तान हो, क्या सड़क हो, क्या सवारी हो, क्या कोई काम काज हो, किसी भी मसरूफियत में आप वो नसीहत तो कर सकते हैं। इसमें कोई गैर रस्मी नसीहत को बुनियाद बनाकर रस्मी प्रोग्रामों और जलसों का कब्रिस्तान में इनाकाद करना ये दलील के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, ये दलील के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता है, ये दलील के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता है। गैर रस्मी तौर पर ये ज़ाहिर है वो मकामात नहीं हैं कि जहाँ अल्लाह का ज़िक्र ना किया जा सकता हो। तो बाथरूम में आप अल्लाह का ज़िक्र करने से रोका गया है या बाज़ और मकामात पर रोका गया है, तो ये उन मकामात में से नहीं है। आपने तो घोड़े के पेट पर भी बैठे हुए नसीहत की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल चलते हुए नसीहत की है, आपने दौड़ते हुए नसीहत की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर बैठे हुए नसीहत की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऊँटनियों पर बैठ कर ही तो जलसा नहीं हो रहा था। ये कोई रस्मी नसीहत नहीं है, ये गैर रस्मी नसीहत है। हमारे यहाँ जो सिलसिले
मुकर्रर तारीख़ों को पूरी ख़ास तरतीबों के साथ जो इनाक़ाद होता है, इससे तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री ईदन युअबद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को ज़ियारत गाह न बनाना, ईद का मकाम न बनाना कि यहाँ आकर लोग इसकी इबादत करने लग जाएँ। वसनन युअबद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनने देना कि लोग इसके कब्र की इबादत शुरू कर दें। नहीं नहीं, जो रस्मी शक्लें हैं इनाक़ाद की, जलसों की, प्रोग्रामों की, उनका मकाम कब्रिस्तान नहीं है। आपने कभी कब्रिस्तान में कोई जलसा नहीं किया। आन अलीयन, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर कफ़ालत रहे। अबुल हसन भी कुन्नियत है, अबू तुराब भी कुन्नियत है सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और सबसे पहले बच्चों में यानी 9 उम्रों में सबसे पहले मुसलमान होने वाले अफराद में से सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का छोड़ा, 27 सफ़र हिजरत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अपने बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिटाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अमानतें दी थी कि आप ये अमानतें अहले मक्का की उन्हें वापस करके मेरे घर वालों को लेकर आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अफराद सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत में हिजरत करके मदीने पहुँचे थे। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो शादी है, ये बदर के फ़ौरन बाद हुई है। रिश्ते की बात पहले हो चुकी थी और जो शादी हुई है या रुखसती हुई है फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, वो बदर के फ़ौरन बाद हुई है, बदर के फ़ौरन बाद हुई है। और ख़र्चे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने माल खुमस में से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ऊँट अपनी तरफ से दिया था और एक ऊँट अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बदर के अम्बाल गनीमत में हिस्से में आया था। एक ऊँट अली रज़ी अल्लाह अन्हु को माल गनीमत के हिस्से में आया था और इन दोनों ऊँटों पर सामान वगैरह लाद के जाना और जाके इसकर काट के लाना और सुनारों को आकर बेचना और वहाँ से पैसे कमाना और वलीमे का ख़र्चा इकट्ठा करना, ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु का प्रोग्राम था। बुखारी में हदीस आती है, आगे आ जाएगी, ये पीछे गुज़री होगी। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी 2 ऊँटनियाँ थीं, मैंने एक अंसारी के घर के सामने बिठाई और मैंने एक यहूदी के साथ हिस्सेदारी पर काम किया, पार्टनरशिप पर तय ये हुआ कि हम दोनों जाएंगे और इसके घास काट के लाएंगे और वो इसके आकर हम मदीने के सुनारों को, लोहारों को बेचेंगे और पैसे कमाएंगे ताकि मैं वलीमे का ख़र्चा इकट्ठा कर सकूं, लेकिन अल्लाह का करना, वो कहते हैं मैं आया तो मैंने दोनों ऊँटनियों को मरा हुआ पाया, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा किसने किया है? मुझे बताया गया कि चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मदहोशी के आलम में उनसे ये काम हो गया है, अभी शराब हराम नहीं हुई थी। तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपको शिकायत लगाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए तो हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी अफ़ाक़े की सूरत में नहीं थे, तो आप वापस पलट गए। जब अफ़ाक़े में आए हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमज़ा से 2 ऊँटनियाँ लेकर मुझे वापस कराई। तो अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का एक तज़किरा इंशाअल्लाह हम अगले सबक में करके इस बात को आगे बढ़ा देंगे। खालिद साहब ने किताब बंद करके इशारा दे दिया है, बस किफ़ायत करते हैं। सुभानअल्लाह।